Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my channel. This is my first live class here. So yes, Pavitra, Shudipa, Navsing, good morning, welcome. So today our topic is, hello Zohra, good morning, welcome. So am I audible and visible to all of you? Please confirm. Okay, yes, Ayushi, good morning, welcome. So today our topic is Victorian Age Introduction and Historical Background. So we have already covered Romantic Age. So now today we will start with Victorian Age, and you all know that Victorian Age has a lot of important historical events, important acts and commissions. We will do all that. Hello Anirbanda, good morning. Shantani, good morning. Jyoti, good morning, welcome. Yes. So before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal state examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. Zohra actually मतलब अभी बिगिनिंग से स्टार्ट करना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्लासेस ले चुकी हूँ अनअकैडमी पर. सो करेंटली मतलब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मई में आपका एग्ज़ाम है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचा है आई विल ट्राई टू कवर अप दैट. बट फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स मतलब दिसंबर का जो प्रिपरेशन होगा उसमें मैं बिगिनिंग से ही स्टार्ट करवाऊँ. ठीक है, ओके. So this is the link of my Telegram channel. So please join to get notifications of all important classes, and also please like, share and subscribe my YouTube channel. So yes, thank you all for joining, and this is the timing of my classes. आज से ये classes start हो रही है. So this is your timing. So please note it down and try to join live. Okay. So today our topic is Victorian Age. Now let's begin our topic. So you all know that Victorian Age timeline 1837 1901, and Victorian Age it is named after Queen Victoria. This is also quite common. So what was the condition of England at that time? Today we will discuss that. So yes, named after Queen Victoria, and this was an era of peace. तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम में मोर और लेस जो ब्रिटेन का ट्यूमल्टस सिचुएशन था वो ग्रेजुअली शांत हो गया, एंड इट इज़ अ वेरी प्रॉस्परस टाइम ऑल्सो इन इंग्लिश लिटरेचर. हेलो रूपाली, गुड मॉर्निंग. वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग, वेलकम. सो बहुत प्रेस्टिजियस टाइम था ये इंग्लैंड के लिए, नॉट ओनली द सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड बट ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर. हेलो राबिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम. So England enjoyed much prestige this time, and more or less it was an era of peace. ऐसा नहीं कि कोई भी war नहीं हुआ, but जो हुआ है वो small scale में हुआ था, not in a greater scale like the other wars. So more or less it was an era of peace, and some continental war broke out. Intercontinent कुछ wars हुआ था, but none could disturb English life so vehemently except Crimean War. Only one incident. Hello Papri, good morning, welcome. Only one incident is was very prominent, that was Crimean War. तो क्रीमियन वार के अलावा और कोई भी मतलब ऐसा बड़ा वार नहीं था जो इंग्लैंड के लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर पाए. सो दैट इज वाई मोर और लेस इट वाज एन एरा ऑफ पीस, एंड टाइमलाइन जरूर याद रखना 1837 से 1901 तक. यस, ओके. तो क्रीमियन वॉर क्या था हम थोड़ा सा जान लेते हैं. क्रीमियन वॉर 1854 से लेकर 56 तक चला. So it started when Russian Tsar Nicholas I decided to take control of Jerusalem and other holy places in Turkey. So it was an it was a war of religion, आप कह सकते हो. तो जेरूसलम में क्या कोशिश कर रहे थे रशियन जार निकोलस द फर्स्ट? ही ट्राइड टू कैप्चर जेरूसलम का कंट्रोल वो लेने की कोशिश कर रहे थे, एंड ऑल्सो द अदर होली प्लेसेस ऑफ टर्की. सो अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ इन्वेशन ये वार हुआ था. ठीक है, तो दैट वाज नोन एज क्रीमियन वार. एंड इसमें क्या था, मतलब बेसिक वार तो था
जेरूसलम एंड टर्की के साथ रशिया का, बट अदर कंट्रीज ऑल्सो केम इन सपोर्ट ऑफ देम। तो जैसे इंग्लैंड एंड फ्रांस सपोर्टेड टर्की एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रशिया। तो टर्की अकेले थे, उसके पास आ गया इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रशिया। सो दिस इज एक्चुअली द क्रिमियन वॉर बैकग्राउंड। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूँ तो आप बस इतना जान के रख, मतलब यहाँ से इतना डीप में क्वेश्चंस नहीं आता, बट यस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने PYQ में आपको करवाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को लेकर क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर were not passed in Victorian age or passed in Victorian age, इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो क्रिमियन वॉर इंपॉर्टेंट और एक कारण के लिए है क्योंकि अल्फ्रेड टेनिसन रोट द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार PYQ में आया था कि दिस पोएम इज रिटन इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट। तो अल्फ्रेड टेनिसन रोट दिस पर्टिकुलर पोएम द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमियन वॉर। सो रिमेंबर दैट। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? एट द एंड रशियंस वर डिफीटेड। हेलो शुभांगी, गुड मॉर्निंग। संदीप, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सो फाइनली रशियंस वर डिफीटेड। तो दिस इज द क्रिमियन वॉर सिनेरियो कि 1854 में स्टार्ट हुआ था, अल्टीमेटली 1856 में ये खत्म हुआ। एंड इट वाज स्टार्टेड, क्यों ये स्टार्ट हुआ था? क्योंकि रशियन जार निकोलस द फर्स्ट ही डिसाइडेड टू कंट्रोल द रिलीजियस एरियाज, सॉरी द होली एरियाज ऑफ Jerusalem and also Turkey. So the religious people, they could not accept this kind of invasion or control from an outside country. So that is why they rebelled against they rebelled against Russia, and Turkey के support में आए थे इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस भी वॉर डिक्लेयर किया था रशिया के अगेंस्ट में। दैट इज व्हाई इट बिकेम ए ग्रेट वॉर एट दैट टाइम। एंड फाइनली रशियंस वर डिफीटेड एंड इंग्लैंड फ्रांस टर्की का जो जॉइंट सिनेरियो था वो जीत गया, वो पूरा का पूरा टीम जीत गया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, टेनिसन रोट दिस पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। हेलो रवि, अग्नि, ज्योति, निशी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। ओके, सो ये बात है क्रिमियन वॉर का। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड जो मैंने बताया। सो मोर और लेस इट वाज एन एरा ऑफ पीस, बट ओनली वन वॉर व्हिच वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, दैट वाज क्रिमियन वॉर। अदरवाइज बाकी जो इंसिडेंट्स थे उसमें इंग्लैंड का कोई इन दैट सेंस बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसीलिए मोर और लेस पीसफुल एरा। बट सोशल कंडीशंस उस टाइम में क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ से ही बेसिकली आते हैं जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है विक्टोरियन एज का बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। सो सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग विक्टोरियन एज, हाउ वाज दैट? तो सोशल कंडीशन में क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम था फ्लरिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। यस, डेमोक्रेटिक आइडियल्स का फ्लरिशमेंट हुआ था इस टाइम। कैसे हुआ था देखो। द हाउस ऑफ कॉमन्स, पार्लियामेंट में आप सभी जानते हो। सो द हाउस ऑफ कॉमन्स बिकेम द रूलिंग पावर ऑफ इंग्लैंड। यस, हाउस ऑफ कॉमन मीन्स द कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल का जो पावर इससे पहले उतना ज्यादा एक्टिवली नहीं था। द रोमांटिक पोएट्स ऑल्सो बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक आइडियल्स, बट वो बिलीव करते थे, लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में ये एप्लीकेबल उस टाइम में उतना ज्यादा नहीं था जितना ज्यादा विक्टोरियन एज में हुआ, राइट। सो द हाउस ऑफ कॉमन्स बिकेम द रूलिंग पावर ऑफ इंग्लैंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉमन पीपल का पावर एस्टैब्लिश हुआ। And human desire was given greater recognition, and there was a desire to break down man-made social conventions. Yes, so the age was itself a revolutionary age, right? And इस टाइम में क्या था कि the people of England, they are trying to break the social conventions, मतलब जो ट्रेडिशनल रूल्स चले आ रहे हैं उसको ब्रेक करके कुछ नया चीज करने का एक टाइप का जो डिजायर है वो इस टाइम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो एज द कंट्री वॉज इन अ पीसफुल कंडीशन, सो पीपल आर गिविंग अटेंशन टू दीज काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स। अगर कंट्री के बीच में वॉर चले तो बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, राइट। बट इस टाइम में क्या था क्वीन विक्टोरिया के रेन में कि कंट्री मोर और लेस पीसफुल था, एक्सेप्ट अगर हम क्रिमियन वॉर को छोड़ दें।
मोर और लेस पीसफुल था। एंड इसके मतलब इफेक्ट क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स और ऑल द पीपल दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स। तो सोसाइटी में जितने भी एज ओल्ड कस्टम्स, एज ओल्ड ट्रेडिशंस, कन्वेंशनल जो रूल्स थे, उनको ब्रेक करने का एक डिजायर कि चलो कुछ नया चीज करते हैं, राइट। एंड क्या था कि ह्यूमन डिजायर वाज गिवन ग्रेटर रिकॉग्निशन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स वाज इन पावर। सो ह्यूमन डिजायर्स, कॉमन पीपल का क्या डिजायर है, उसका क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग्स है, इसके ऊपर फोकस ज्यादा आ गया था, जो इससे पहले उतना ज्यादा नहीं था। सो ह्यूमन डिजायर वाज गिवन ग्रेटर रिकॉग्निशन। एंड ये और भी ज्यादा बढ़ गया जब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन स्टार्ट हुआ। तो इससे पहले क्या था कि चर्च वाज एट द सेंट्रल पोजिशन, बट ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो गया था। So yes, human desire was given greater recognition and there was a desire to break down man-made social conventions. Yes, so this is one point. Next point क्या था? Progress of education. Yes, this time the journals, magazines बहुत ज़्यादा publish होना start हो गया and लोग पढ़ने लगे, ये सबसे important चीज़ है। So telegraph, newspapers, these were widely read. तो gradually क्या हो रहा है, देखो mass awareness हो रहा है, राइट। तो जितना ज्यादा एजुकेशन का प्रोग्रेस हो रहा है, जितना ज्यादा मास मीडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ही ज्यादा मास अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो डेमोक्रेटिक आइडियाल्स के साथ साथ प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन चल रहा था एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत चीप हो गया था, चीप ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विच मीन्स इसके इफेक्ट में क्या हुआ कि जो कंट्री, दोनों कंट्री के बीच में या फिर एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया। दैट इज वाई पीपल आर ट्रैवलिंग, एक्चुअली पीपल आर ट्रैवलिंग एंड थ्रू ट्रैवलिंग वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो एवरीथिंग, हेलो किंकिनी, गुड मॉर्निंग। यस, सो ये हो रहा था, चीप ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इसीलिए जो कम्युनिकेशन है बिटवीन कंट्रीज और एक कंट्री के अंदर ही जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है उन सब के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ गया। सो इट हेल्प्स टू एनहांस द रिलेशनशिप, टू डेवलप द बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट, सो चीप ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सॉरी, एंड फ्लरिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। और क्या क्या चीज हुआ है देखो, फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, हाँ तो ये तो पॉजिटिव साइड गया सोसाइटी का, बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक हुआ था, विच इज की फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स दे रिसीव्ड लो पेमेंट, पेमेंट कम हो गया। सो फैक्ट्री वर्कर्स एंड द फार्म लेबरर्स दे वर एक्सप्लॉयटेड एक्चुअली। दिस वाज इंडस्ट्री का तो डेवलपमेंट हुआ ऑब्वियसली, बट द वर्कर्स कंडीशंस रिमेन्स द सेम। तो फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स दे रिसीव्ड लो पेमेंट्स, उनका पेमेंट कम था, बट दे गॉट फ्री हाउस एंड फ्री सप्लाई ऑफ फूड। यस, तो फ्रीली उनको हाउस मिला था एंड सप्लाई ऑफ फूड चल रहे थे, बट हाउस का पेमेंट लो था। एंड फार्म लेबरर्स दे वर एक्सप्लॉयटेड ऑल्सो इन सम एरियाज। And another bad impact क्या था, towns were overcrowded with poor people. So as I have already told you कि transport system became very cheaper. तो अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाए तो जाहिर सी बात यह है कि गांव से लोग शहर में ज्यादा आएगा। तो जॉब्स के लिए कहो, एजुकेशन के लिए कहो, एजुकेशन का प्रोग्रेस चल रहा था, तो जो लोग थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड एरिया में है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवलप्ड जगह पर जाए, ठीक है, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ऑटोमेटिकली टाउन और टाउन रिलेटेड जो एरियाज है वहां का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। दे वर ओवर क्राउडेड विथ पुअर पीपल एंड ऑब्वियसली देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब ओवर क्राउडेड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह तो सभी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल हो जाता है, जो कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे देखो आज जो चीज हो रहा है कि ओवर पॉपुलेशन, दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टुडे इन इंडियन सिनेरियो। तो देखो पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रही है बट उतना ज्यादा वैकेंसी नहीं निकल रहे, राइट, इसीलिए इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर भी वही चीज था कि पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड एज द एजुकेशन सिस्टम इज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग, और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इजी हो गया, वो आने लगे बहुत इजीली, ठीक है। तो टाउन्स के जितने भी जगह है जहां पर जॉब्स का फैसिलिटी है, जहां पर एजुकेशन का फैसिलिटी है, वहां पर वो आ रहे हैं। एंड क्या था कि इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पुअर पीपल यहाँ पर आने लगे इन सर्च ऑफ जॉब, बट ग्रेजुअली देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज
too much population, so it is not possible to give job to everyone. And both young boys and girls worked. हाँ, तो फैक्ट्री में both young boys and young girls काम करते थे. तो इसका हमने इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुआ था रोमांटिक एज में, तब भी हमने देखा चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक का कि यंग बॉयज दे आर फोर्स्ड ऑलमोस्ट टू वर्क इनसाइड द चिमनीज. अच्छा, शुभांगी कह रहे मैम 1 आवर क्लास. शुभांगी ऐसे मतलब मैंने सोचा नहीं है कितने घंटे मतलब कितना टाइम होगा, तो 1 आवर से कम भी हो सकता है. ठीक है, एज सच कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो देखा जाए ये टॉपिक कितने देर तक कंप्लीट हो जाए. हेलो अंकुश, गुड मॉर्निंग, वेलकम. सो यस, बोथ यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स वर्कड. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ देखो. हाँ, तो ये बेसिकली था सिनेरियो. नाउ वी मूव ऑन टू जहां से आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड उसके जो भी डिसीशंस थे. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि विक्टोरियन एज में मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो चल रहा है और उसके साथ साथ सोसाइटी में इतने सारे सिचुएशंस चल रहे हैं. तो एक साइड में जैसे डेवलपमेंट भी हो रहा है, दूसरे साइड में मतलब रिच पुअर का जो डिविजन है वो बहुत बढ़ रहा है, एंड पुअर पीपल आर ग्रेजुअली ओवर क्राउडिंग द टाउन एंड टाउन एसोसिएटेड एरियाज. सो दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द सोसाइटी. तो सोशल स्ट्रक्चर ग्रेजुअली हैम्पर हो रहा है इससे, राइट. एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है फैक्ट्री में. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि बच्चे लोगों को काम करने के लिए भेज दिया जा रहा है इन फैक्ट्री एंड इन अदर एरियाज. सो जैसे हमने चिमनी स्वीपर में भी देखा. तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स यहाँ पर पब्लिश हुआ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो प्लीज लाइक एंड शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके. ओके, सो क्या क्या एक्ट्स था, इंपॉर्टेंट एक्ट्स में फर्स्ट था चिमनी स्वीपर एक्ट पब्लिश्ड इन 1840. तो यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं. मैंने जो आपको कहा था कि पीवाईक्यू में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स were not passed during Victorian age or were passed during Victorian age. So आप एक्ट्स का नाम एंड उसके पब्लिकेशन ईयर को जरूर याद रखना. तो मैं बहुत शॉर्ट में लिखा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. तो चिमनी स्वीपर एक्ट पब्लिश हुआ था 1840 में, एंड मेन पर्सन जो था जिसका नाम था लॉर्ड एशली. लॉर्ड एशली, अर्ल ऑफ सैफ्ट्सबेरी, was credited with publication of the act. He was the main person जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि चिमनी स्वीपर्स के लिए एक एक्ट जरूर बनाना चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव रेड चिमनी स्वीपर्स. आप सभी जानते हो कि क्या कंडीशन था उन बच्चों का. So they were very small, so they are forced to go inside the chimney and to clean the surrounding area. So this is very very difficult, right? So Lord Ashley, Earl of Shaftesbury, he was the first person to be credited with the publication of the act. And इसके क्या बताया गया था कि prohibited children to work in chimneys. Yes, तो children को काम नहीं किया जाएगा because it is a very risky job. And children are मतलब they are too small to work, right? तो चिल्ड्रन को कभी भी कोई भी काम के लिए नहीं लगाया जाएगा, एंड चिमनी साफ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट इज टू रिस्की एंड टू डेंजरस. तो प्रोहिबिटेड चिल्ड्रन टू वर्क इन चिमनीज, ये बेसिकली बताया गया था चिमनी स्वीपर एक्ट पब्लिश्ड इन 1840. उसके बाद पब्लिश हुआ था माइंस एक्ट पब्लिश्ड इन 1842. सो माइंस में भी यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स दे आर फोर्स्ड टू वर्क. सो माइंस एक्ट में क्या बताया गया था, इट प्रोहिबिटेड वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 13 टू वर्क इन माइंस. तो 13 एज के कम उम्र की कोई भी वीमेन एंड कोई भी चिल्ड्रन को काम में नहीं लगाया जाएगा इनसाइड माइंस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी रिस्की. आप न्यूज चैनल में सुनते हो कि माइन ब्लास्ट होकर बहुत सारे जो लेबरर्स होते हैं वो मारे जाते हैं. सो इट्स अ वेरी रिस्की जॉब. तो कोई भी रिस्की काम के लिए बच्चे को एंड वीमेन दे शुड नॉट बी एम्प्लॉयड. चिमनी स्वीपर एक्ट में कहा गया कि नो चिल्ड्रन विल बी अलाउड टू वर्क इनसाइड चिमनीज, एंड माइंस एक्ट में ये कहा गया कि वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 13 के नीचे में उसे कोई भी माइन में काम नहीं दिया जाएगा. ठीक है. So it was the decision of Mines Act published in 1842.
वी नीड टू स्टडी मोर अबाउट दिस एक्ट्स और स्लाइड्स आर इनफ। नो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि कौन कौन सा एक्ट कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था एंड वो विक्टोरियन एज के अंदर था। तो बेसिकली नाम से क्वेश्चन, मतलब मैंने जितना देखा है पीवाईक्यू में, बेसिकली नाम से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कोल माइंस, यस। तो टाइटल से क्वेश्चन आते हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज पास्ड वेयर और इन व्हिच ईयर। तो बस मैंने इसीलिए छोटा छोटा करके बताया, तो इतना डीप में हाँ आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में इतना डीप में क्वेश्चंस कम ही आते हैं। ठीक है, ओके। सो आप बस टाइटल याद रखो एंड वो कब पब्लिश हुआ था ये याद रखो। सो प्रोहिबिटेड वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 13 टू वर्क इन माइंस। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था पब्लिक हेल्थ एक्ट, पब्लिश्ड इन 1848। पब्लिक हेल्थ एक्ट। So Edwin Chadwick set up a public health board in London। एक public health board तैयार हुआ था। देखो मैंने बताया था कि human desires, public desires were given prominence at that time। So public health को भी बड़ा priority दिया गया and public health board set up किया गया था by Edwin Chadwick in London। एंड इसमें क्या बताया गया था कि हेल्थ इश्यूज मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये पूरा का पूरा सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक हेल्थ को देखभाल करना एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को संभालना। ठीक है, सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन गवर्नमेंट। सो दैट वाज द डिसीजन ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्ट। और क्या क्या एक्ट इस टाइम आए थे? हाँ, और इस टाइम आए थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1835। इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। एंड इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1833। स्लेव इमांसिपेशन, इसका रेफरेंस बहुत ज्यादा हमें मिलता है लिटरेचर में। तो इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स ये पास हुआ था 1833। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट वाज रिफॉर्म एक्ट। तो रोमांटिक एज में एक रिफॉर्म एक्ट पब्लिश हुआ था एंड यहाँ पर रिफॉर्म एक्ट पब्लिश हो रहा है उसके बाद विक्टोरियन एज में। तो रिफॉर्म एक्ट को आप इन डिटेल एक बार समझ लो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है अगर कहा जाए। सो यस, दीज आर द एक्ट्स। और हम जाते हैं रिफॉर्म एक्ट में। सो सेकेंड एंड थर्ड रिफॉर्म एक्ट्स पब्लिश हुआ था 1867 एंड 1884। दीज ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिफॉर्म एक्ट के ईयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब तीनों रिफॉर्म एक्ट्स पब्लिश हुआ था, तो कौन कौन ईयर में हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिफॉर्म एक्ट। So also remember that it is 1867 and 1884 में second and third reform act publish हुआ था which fall under Victorian age। एंड क्या हुआ था? एजुकेशन एक्ट 1870 में पहली बार एजुकेशन के लिए, यस 1832 में फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद 1867 एंड 1884। तो 1870 में एजुकेशन एक्ट वाज पब्लिश्ड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले एजुकेशन रिलेटेड सेपरेट एक्ट कोई इन दैट सेंस पब्लिश नहीं हुआ था। अच्छा, वीरेंद्र कह रहे लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड ये था। तो एजुकेशन रिलेटेड इससे पहले कोई एक्ट ये सिस्टमैटिक तरीके से पब्लिश नहीं हुआ जो विक्टोरियन एज में हुआ था। ठीक है, अच्छा वीरेंद्र जब हो जाए तब बता देना। अच्छा चलो ठीक है, हो गया, ओके। सो यस, एजुकेशन एक्ट में देखो क्या कहा गया था। प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी फॉर एवरी चाइल्ड। यस, तो चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए हमने देखा कि चिमनी स्वीपर एक्ट, माइंस एक्ट, दीज वर ऑल ट्राइंग टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। एंड यहाँ पर क्या बताया गया एजुकेशन एक्ट में कि यस, प्राइमरी एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया फॉर एवरी चाइल्ड। सो हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन तो लेना ही लेना है, उनको काम करना नहीं है, उनको पढ़ना है। ठीक है, सो यस, प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी फॉर एवरी चाइल्ड। एंड उसके बाद क्या हुआ? डिवाइडेड इंग्लैंड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंट्रोल्ड बाय स्कूल बोर्ड्स। यस, तो इंग्लैंड को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया एंड
क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड क्यों कर दिया गया, ताकि कंट्रोल रखने में आसानी हो। तो एक बड़ा सा कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है बाय वन सिंगल गवर्नमेंट, इसलिए डिवाइड कर दिया गया और एक एक सेगमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक पर्सन के ऊपर दिया गया। ठीक है, सो डिवाइडेड इंग्लैंड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंट्रोल्ड बाय स्कूल बोर्ड्स। स्कूल बोर्ड के हाथ में एक एक डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल दिया गया। ठीक है, एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड दिस टाइम। बहुत ज्यादा इस टाइम, मैंने पहले ही बताया था कि दिस वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव इरा इन एजुकेशन। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हुए एंड वीमेन एजुकेशन वाज प्रायोरिटाइज्ड। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीमेन एजुकेशन वाज प्रायोरिटाइज्ड। तो वीमेन एंड चिल्ड्रेन बोथ वर्क इन फैक्ट्री। तो इसको बंद करके क्या कहा गया है कि वीमेन एंड चिल्ड्रेन बोथ विल बी एजुकेटेड फर्स्ट, देन वर्क की बात आते हैं। सो प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दिया गया। इंग्लैंड वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी डिस्ट्रिक्ट सो दैट स्कूल बोर्ड्स कैन कंट्रोल द एजुकेशन सिस्टम और कैन मॉनिटर द एजुकेशन सिस्टम। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड हुआ एंड वीमेन एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एक्ट्स, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट एक्ट्स। अच्छा, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ लिंक को शेयर कर देना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शायद नहीं दिया है, नेक्स्ट वीडियो से मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लो एंड ये क्लास का टाइमिंग है, आप नोट डाउन कर लेना सो दैट यू कैन ज्वाइन लाइव। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम टॉपिक में आते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। तो सो फार वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट्स, सोशल कंडीशन क्या था, एक ओवरव्यू। अब हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल क्या क्या फीचर्स था। अगर हम फीचर की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, और इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि देखो एज का आइडिया हम सबको होता है, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज हम सब जानते हैं, बट अगर कोई इंस्टेंट पूछे कि भाई दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो इट ऑलवेज कंफ्यूजेस अस कि क्या कहा जाए। ठीक है, तो हम एज के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऑथर्स के बारे में भी जानते हैं, बट अगर इंस्टेंट कहा जाए कि कोई 5-6 फीचर्स बताओ एज का, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दूं कि क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको पूछा जाए कि क्या है विक्टोरियन एज का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें मतलब इससे क्या होगा कि मतलब ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज, बट यस, अगर सपोज कोई भी एक कोटेशन दिया है, कोई भी एक पोएट्री दिया है, आपको ऑथर के बारे में नहीं पता, बट आपको गेस करना है, तो गेस आप कैसे कर पाओगे? आपको एटलीस्ट पोएट्री के लाइंस पढ़कर आपको एक चीज याद होगा कि इस टाइप का पोएट्री कौन सी एज में लिखी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए एज को जानना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी देखो हम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते, तो जाहिर सी बात है कि हर एक वर्क का पब्लिकेशन ईयर, हर एक राइटर का टाइम लाइन आप याद नहीं रख पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो जितना भी इंपॉर्टेंट राइटर हो, यू कैन नॉट रिमेंबर। ठीक है, बस कुछ ही हमें याद रहता है, सब याद रखना मुश्किल है। और अगर वो क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको अरेंज करने के लिए दिया जाए, सबसे ज्यादा होता है कि अगर वर्क्स को या फिर ऑथर्स को अरेंज करने दिया जाए, तो क्या होता है, मैं भी ऐसे ही करती थी एग्जाम में कि एग्जैक्ट अगर टाइमलाइन आपको नहीं मिल रहा है तो आप एटलीस्ट एज वाइज उनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बफरिंग हो रहा है वीरेंद्र, अच्छा एक बार रिफ्रेश कर लो, मेरे यहाँ तो इंटरनेट सही है, सही चल रहा है इंटरनेट, एक बार रिफ्रेश कर लो। तो हाँ, जो मैं बता रही थी, तो इसमें क्या होता है कि इफ यू हैव फॉरगॉटन द टाइम लाइन ऑफ द ऑथर, लेकिन अगर आप एज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर पाओ तो भी आप मैच कर पाओगे। ठीक है, सपोज आपको मतलब दिया है एक मिडियावल एज का राइटर, सपोज विलियम लैंगलैंड दिया है, उसके साथ और कोई राइटर दिया है, तो आपको पता, आपको लैंगलैंड का टाइमलाइन नहीं पता, बट आपको ये पता है कि विलियम लैंगलैंड बिलोंग्स टू द मिडियावल टाइम। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन एज में वो थे, तो अगर आपको एज मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एज का टाइमलाइन, एज का कैरेक्टरिस्टिक्स, एज को जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्या है, देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद हम जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो क्या था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट है इंटरेस्ट इन मैन एंड सोसाइटी एंड हिज ट्रबल्स। यस, सो मैंने प्रीवियसली जो बताया
प्रीवियसली मैंने जो बताया कि इंटरेस्ट इन मैन एंड सोसाइटी एंड हिज ट्रबल्स, तो ह्यूमन डिजायर्स, ह्यूमन बींग्स के ऊपर फोकस ज्यादा आ गया, एंड पब्लिक पब्लिक क्या चाह रहे हैं, पब्लिक का क्या डिमांड है, ओवरऑल पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, इसके ऊपर फोकस ज्यादा आ रहे थे। तो इंटरेस्ट इन मैन एंड सोसाइटी एंड हिज ट्रबल्स, तो सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सोसाइटल इश्यूज। इसीलिए देखो, आप कोई भी विक्टोरियन एज के नॉवेल या पोएट्री को देखो, ज्यादा से ज्यादा सोशल थीम ज्यादा होते हैं। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में देखो, हार्ड टाइम्स पढ़ो, ब्लिक हाउस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वहां पर भी सोशल थीम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री वर्कर्स, सोसाइटल कंडीशंस। हार्डी के नॉवेल्स में भी सेम है, टेस्ट, रिटर्न ऑफ द नेटिव, जूड द ऑब्सक्योर, कोई भी नॉवेल आप उठाओ तो कोई ना कोई सोसाइटी का पिक्चर वहां पर दिख रहा है, राइट। तो वही बात कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इन मैन एंड सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर फोकस ज्यादा था, एंड ऑटोमेटिकली सोसाइटी के ऊपर फोकस मीन्स मैन, और जो सोसाइटी में जो रहते हैं वो तो ह्यूमन बींग्स ही है, तो उनके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस, उनके ट्रबल के ऊपर फोकस करना, ठीक है। सो दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ विक्टोरियन एज, नंबर 1। नंबर 2 क्या था, अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। यस, तो पीपल दे वर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर्स और कई सारे जो मास मीडियाज है उनका डेवलपमेंट इस टाइम चल रहा था, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा था, ऑटोमेटिकली पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड टू केयर ऑफ द वीकेस्ट इंडिविजुअल्स, ट्राइंग टू हेल्प देम इन देयर डेली ओरीज। तो मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, ये हर बार वर्क किया था ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर का हाल बहुत ही बुरा था, बट हाँ, ह्यूमैनिटी के लिए लिखना, ह्यूमैनिटी के लिए बताना, विक्टोरियन एज के राइटर्स के अंदर भी देखो एक ह्यूमैनिटेरियन फिलोसॉफी था, राइट, कि समाज की जो वीकेस्ट इंडिविजुअल्स है उनके बारे में लिखना। क्यों डिकेंस लिख रहा है, क्यों हार्डी लिख रहा है, क्योंकि मकसद ये है कि सोसाइटी, द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, राइट, फॉर दिस रीजन दे आर राइटिंग। सो वही बात है कि वीकेस्ट इंडिविजुअल के ऊपर फोकस ज्यादा था, एंड उसके बारे में लिखना, जिसके बारे में कोई भी लिटरेचर में नहीं बताता है, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में लोगों को बताना, ये राइटर्स का भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वीकेस्ट इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू हेल्प देम इन देयर डेली ओरीज। तो ओवरऑल बेसिकली बात ये है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर और ह्यूमन बींग्स के ऊपर फोकस ज्यादा था, सोसाइटल प्रॉब्लम्स वर हाईलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ट्राई टू यूनाइट बोथ न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन एंड द रोमांटिक वन। यस, तो न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन का कंप्लीट अगेंस्ट था रोमांटिक एज, आप सभी जानते हो, बट विक्टोरियन एज इज ट्राइंग टू बैलेंस दिस टू, न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन एंड उसके साथ रोमांटिक फीलिंग्स, दोनों चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे विक्टोरियन एज। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, तो नॉट एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन, बट इट इज अ हार्मोनियस बॉन्डिंग आप कह सकते हो। न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक एज दोनों को मिला करके अगर कोई एज बनता है, सो इट इज विक्टोरियन एज, राइट। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू टाउन टू गेट जॉब्स इन फैक्ट्रीज। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टाउन्स वर गेटिंग ओवर क्राउडेड। मेन रीजन ये था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट is very low, the transport system becomes very easier, and इसीलिए ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम विलेज टू टाउन टू गेट जॉब्स इन फैक्ट्रीज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने 4 फीचर्स बताए, और क्या थे, अच्छा हाँ, मेन अगर फीचर्स की बात करो तो यही फीचर थे, एंड इसके बाद ये भी फीचर के अंदर आते हैं, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ये भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अब हम बात करें। तो मेन फीचर हमने बता दिया, 3-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर बात किया जाए तो, ये मतलब मैं एज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, नॉट विक्टोरियन लिटरेचर, ठीक है। एज में अगर सोसाइटी में देखा जाए तो ये कुछ फीचर्स हमको नजर में आते हैं ओवरऑल। और इसके बाद आते हैं हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन एंड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो विक्टोरियन सोसाइटी को डिस्टिंग्विश करता है। सो एज साइंस, एज एजुकेशन इज प्रोग्रेसिंग, एंड इसका मेन पॉइंट क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन। डार्विन ने जो बुक लिखा है 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग बुक, बिकॉज डार्विन ने क्या बताया था कि थ्योरी, यस, टर्म कॉइन्ड बाय चेस्टरटन, यस,
तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन ने बताया, तो इतने देर तक हमारे अंदर क्या बिलीफ था कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, गॉड हैज क्रिएटेड एनिमल्स। तो चर्च में ये बता रहे थे कि गॉड इज योर सुप्रीम ऑथोरिटी, सो बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी ओके, राइट। सो चर्च वॉज एट द सेंटर पॉइंट। ये भी आप कह सकते हो वन टाइप ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, राइट। कि जो मेन बिलीफ था, मेन सेंटर में था रिलीजियन, रिलीजियन वॉज द सेंटर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने जब ये बुक लिखा तब क्या उन्होंने बताया कि नो, गॉड हैज नो इंपॉर्टेंस हियर, इट इज एक्चुअली प्योरली साइंटिफिक थिंग, प्योरली इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस। वर्क्स ऑफ डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूरा नाम, पूरा टाइटल था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो बुक है, ये बुक ऐसा डार्विन ने लिखा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने क्या बताया था कि एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग जो उसके साथ अडॉप्ट कर सकते हैं वो अल्टीमेटली टिक जाते हैं, जो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड इवोल्यूशन मीन्स कि ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ कि हम एप से लेकर के धीरे धीरे डेवलप्ड होकर के हम आज के होमोसेपियंस जिसको हम कहते हैं वहां पर हमने आया है। तो यहाँ पर गॉड का क्या रिलेशन था? इसका मतलब है कि हमारा फादर तो एप्स है, बानर से ह्यूमन बीइंग आए हैं। सो इट्स अ शेयर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप समझो कि बहुत रिलीजियस एक सोसाइटी है और सालों सालों से लोग ये मानकर आ रहे हैं कि रिलीजियन इज एट द सेंट्रल पॉइंट, अगर अचानक से कोई साइंटिस्ट आकर बताए कि नो नो, गॉड का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, ये तो बस साइंटिफिक चीज है कि जो ह्यूमन बींग्स आए हैं, ह्यूमन बींग्स आया है, वो अभी दुनिया में है, जिस दिन उसका मतलब नेसेसिटी चला जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। जैसे कई सारे एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वैसे हम भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसमें गॉड का कोई बात नहीं, ये प्योरली एक साइंटिफिक रूल है जिसके अकॉर्डिंग लाइफ हमारा चल रहा है। तो डार्विन ने ये बताया, सो दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग वर्क बिकॉज इट कंप्लीटली शैटर्स द बिलीफ ऑफ गॉड। तो मतलब ये इस बात के ऊपर क्वेश्चन करता है कि वाकई में गॉड नाम का कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। हाँ, 1859। तो देखो क्या है, हम स्लाइड पे आते हैं। विक्टोरियन एज सॉ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस व्हिच थ्रू चैलेंज, यस, थ्रू चैलेंज टू द ओल्ड एंड क्रिश्चियन वेज ऑफ लाइफ। तो क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा रोल था। चर्च वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। विक्टोरियन एज से पहले आप देखो, कोई भी लिटरेचर कहो, कोई भी सोसाइटी कहो, वहां पर चर्च का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। सोसाइटी में लास्ट वर्ड जिसका होता है दैट इज एक्चुअली चर्च का जो हेड है, बिशप और पोप, राइट, यस। सो विक्टोरियन एज सॉ द डेवलपमेंट, हाँ, Victorian age saw the development of science which threw challenge to the old Christian ways of life. Yes. And उसके बाद क्या था कि डार्विन इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यस, 1859. 89, no वीरेंद्र, इट इज नॉट 1899, 1859, यस, 1859, हाँ, शुभांगी ने सही बताया, 1859. Stating that human beings came through evolution and survival of the fittest. Yes, मैंने जो अभी बताया, हाँ, like dinosaur, yes. तो वही बात है, डायनासोर जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो चला गया। इसको हम आपने बंगाली में भी पढ़ा है लाइफ साइंस में कि ओभिजोजोन। ओभिजोजोन, if it is possible, then any kind of human being or animal can survive in this world. So there is no point of God's blessing और भगवान चाह रहे हैं इसलिए वो है। तो क्या भगवान डायनासोर को प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कि डायनासोर टिक नहीं पाए क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा था उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ऑटोमेटिकली नेचुरल रूल, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उनको जाना पड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये बात है। सो दिस इज द थ्योरी, आप सबने साइंस में पढ़ा है, इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाउ दिस थ्रू द विक्टोरियंस इनटू अ स्टेट ऑफ अटर डिलेमा एंड कंफ्यूजन। तो विक्टोरियंस के बाद, हाँ, रिलीजियस अथॉरिटी लॉस्ट इयर्स। तो अब ये जो देखो, जब वर्क आ गया था तो ग्रेजुअली विक्टोरियन पीपल दे आर प्रोग्रेसिंग, ऑब्वियसली दे आर एजुकेटिंग, दे आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड। बट ऐसा तो नहीं है कि जो साइंस में बिलीव करता है या फिर जो साइंटिस्ट है वो गॉड में बिलीव नहीं करता, ऐसा बताना मुश्किल है। तो कई सारे एजुकेटेड लोग हमें मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सब एथेइस्ट है।
नॉट। तो रिलीजियन के ऊपर बिलीफ सबका था कि नो, अल्टीमेटली रिलीजियन इज द मेन थिंग। बट जब ये आ गया, डार्विन का ये थ्योरी आ गया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, देन इट शैटर्स द होल बिलीफ एंड इट एक्चुअली क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑल्सो। तो अब विक्टोरियंस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि हम किसको बिलीव करें। ऑब्वियसली साइंस को बिलीव ही करना चाहिए, क्योंकि साइंस तो प्रूफ के बेसिस पे चलता है। डार्विन जो कह रहे हैं वो उसका दिमाग में आ गया, वो कह रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया कि हाँ, इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। सो उसको निगेट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। और अगर हम रिलीजियन को निगेट करें तो इतने सालों साल हम जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बिलीव करके हमारा सोसाइटी आगे बढ़ रहा था, तो क्या वो टोटली फॉल्स था? क्या सच में ही गॉड नाम का कोई चीज सही नहीं, ये बस फॉल्स बिलीफ था? सो द चर्च अथॉरिटी, दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग अस। सोफा इतने साल हमको हमारे विश्वास था रिलीजियन के ऊपर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक पर्सन ने आकर ये अचानक बता दिया और ये हम मतलब क्या करें? तो इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। वो निगेट भी नहीं कर सकता था डार्विन के थ्योरी को, एंड वो कंप्लीटली रिलीजियन के ऊपर बिलीव भी नहीं कर सकता था। ठीक है, सो दोनों चीज के बीच में कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है विक्टोरियन एज का। एंड यू कैन सी द बेस्ट एक्सप्रेशन इज डोवर बीच, मैथ्यू आर्नल्ड, आप सबने पढ़ा है। सो डोवर बीच का मतलब एपरेंट प्लॉट तो कुछ अलग है, लेकिन जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, द नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एक्चुअली रिवीलिंग। तो इट मीन्स कि द सी का जो बात हो रहा है, द सी इज कम टू नाइट, तो इससे पोएम स्टार्ट हो रहा है। हाँ, एंड मतलब अगर आप सबने पढ़ा है आई थिंक डोवर बीच, तो अगर आप पूरा पोएम को पढ़ोगे तो इट वेरी क्लियरली शोज द कॉन्फ्लिक्ट कि सी ऑफ फेथ इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। एंड क्या हो रहा है कि नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, विच मीन्स कि एक्चुअली में नेकेड शिंगल्स मीन्स कि सी बीच में जो छोटे छोटे हम पत्थर देखते हैं, तो सी का जो वाटर है वो उनको वो कर जाते हैं, और ग्रेजुअली जब वो मतलब सी का वाटर जब पीछे चले जाते हैं तब वो पत्थर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल मीनिंग, बट इट इज नॉट सो सिंपल। इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ सी ऑफ फेथ, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फेथ जा रहे। किसके ऊपर फेथ जा रहे? रिलीजियन के ऊपर, गॉड के ऊपर, चर्च के ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर से फेथ ग्रेजुअली, सी ऑफ फेथ इज डिसअपियरिंग। Yes, era of doubt and faith. Priority has changed, human become number one position. हाँ, तो sea of faith is disappearing and naked shingles of the world, which is the result of the conflict. कि जो भी मतलब बुरा चीज है, तो अगर देखो रिलीजियन के ऊपर अगर विश्वास हट जाए, तो जो भी चर्च अथॉरिटी इतने सालों तक कहते हैं, और जो हम भी जानते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करें, तो कोई एक पर्सन है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, तो वो देख रहा है ऊपर से हमें। एंड कोई भी अगर हम गलत काम करें तो अल्टीमेटली वो पनिशमेंट हमें जरूर देगा। मे बी हम वर्ल्डली जो पनिशमेंट है, कोर्ट है, जस्टिस का जो सिस्टम है, उनमें से हम बचकर निकल जाए, बट अल्टीमेटली एट द एंड आपको जवाब देना पड़ेगा गॉड के सामने। तो ये बिलीफ था। तो अगर गॉड ही नहीं है, तो ये अगर डार्विन ने एस्टैब्लिश कर दिया कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग और वाचिंग लाइक पैनोप्टिकॉन, कुछ भी अगर नहीं है, तो लोग क्यों माने? तो ये जो सिन एंड वर्च्यू का जो कॉन्सेप्ट है, देखो ग्रेजुअली ये भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द नेकेड शिंगल्स जो आर्नोल्ड ने दिखाया। हाँ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड वेरी एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट, दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन। तो मेटाफोरिकली ही इज डिस्क्राइबिंग दैट। तो ये बात है कि विक्टोरियन के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, एंड ऑब्वियसली दोनों टीम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक particular person, one group of people, they are very very scientific, so they believe that yes, what Darwin is saying is right, we negate religion. and कुछ person थे जो बहुत ही ट्रेडिशनल थे, जो ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनका बिलीफ स्टिल था ऑन रिलीजन कि नहीं, डार्विन जो कह रहे हैं वो पूरा का पूरा सच नहीं हो सकता, मे बी इवोल्यूशन के थ्रू हो रहा है, बट हाँ, भगवान का तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर है। तो वो टोटली गॉड के एग्जिस्टेंस को निगेट नहीं कर पा रहे कुछ रिलीजियस ट्रेडिशनल पीपल, एंड जो मॉडर्न साइंटिफिक पर्सन है वो कंप्लीटली रिलीजन को निगेट करा। सो ये भी एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट था कि सोसाइटी इज एक्चुअली डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑन रिलीजन एंड फेथ ऑन साइंस। ठीक है, हेलो पद्मलया, गुड मॉर्निंग। यस, सुप्रीम पावर रेफरेंस टू एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर सोफोक्लिस इज आल्सो देयर। यस शुभांगी, एब्सोल्युटली राइट। तो दिस वाज द सिनेरियो।
एंड उसमें क्या था कि पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यस, सपोर्टर ऑफ साइंस एंड सपोर्टर ऑफ रिलीजन। तो ये तो बात हो गई थी हमारी कॉन्फ्लिक्ट की। बट यहां से निकलने का एक रास्ता विक्टोरियन पीपल ने खुद ही निकाला था, जिसको हम कहते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या है? इन द लेट विक्टोरियन एज, ये तो मतलब स्टार्टिंग में चल रहे थे जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जस्ट पब्लिश हुआ उसके बाद। बट एट द एंड विक्टोरियन एज में क्या किया गया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए द पीपल, विक्टोरियन पीपल, दे ऑप्टेड फॉर ए कॉम्प्रोमाइज। एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज उन्होंने निकाला। तो कॉम्प्रोमाइज कैसे निकाला? तो कॉम्प्रोमाइज नॉट इन द फील्ड ऑफ रिलीजियन, इन एवरी फील्ड। तो देखो, जब रिलीजियन का एग्जिस्टेंस गड़बड़ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली करप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो सोचते थे कि चलो इतना बुरा काम नहीं करना चाहिए, अल्टीमेटली हम हेल में जा सकते हैं, तो ये बिलीफ ही तो चला गया। इवन हेल का बिलीफ भी नष्ट हो गया। वर्च्यू एंड सिन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी चला गया। गॉड नाम का तो कोई है ही नहीं, तो कोई हमें नहीं देख रहा। बिग बॉस इज वाचिंग यू, तो कोई भी यहाँ पर बिग बॉस नहीं है। हम तो बस साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू आए हैं, और जब हमारा एग्जिस्टेंस का टाइम खत्म हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स भी एक दिन ना एक दिन बाकी एनिमल्स की तरह चला जाएगा अर्थ से, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो, ठीक है। सो दिस वॉज द बिलीफ जो डार्विन ने एस्टैब्लिश किया। नाउ दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। तो दोनों टीम में भाग हो गया, सपोर्टर ऑफ साइंस एंड रिलीजन। बट एट द एंड ऑफ विक्टोरियन एज एक कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन क्रिएट हुआ कि चलो दोनों के बीच में एक मिलजुल करके कोई एक सिद्धांत पर तो आना चाहिए, मतलब ऐसे करके तो सोसाइटी नहीं चल पाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज इन ऑल सेगमेंट्स, नॉट ओनली इन दिस फील्ड। तो कौन कौन से सेगमेंट में हुआ है देखो। हेलो अर्चना, गुड मॉर्निंग। Upper class not need morality and lower class cannot afford morality. Yes, morality tag only for middle class. हाँ, no morals, middle way. हाँ, yes, middle way. That is actually compromising. तो ऑल सेगमेंट्स में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। देखो कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। इन पॉलिटिकल फील्ड दे नेगोशिएटेड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। यस, तो उस टाइम में हमने पहले ही बताया कि प्रोग्रेसिव ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज चल रहा था, तो डेमोक्रेसी भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी एरिस्टोक्रेटिक पर्सन है, यस, जो अपर क्लास पीपल है, उनका तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था इससे पहले, ठीक है। तो अपर क्लास पीपल दे आर एक्चुअली द प्रिजर्वर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ मोरालिटी। तो एरिस्टोक्रेसी को हम कंप्लीटली निगेट नहीं कर सकते। तो एक टाइप का नेगोशिएशन कि हाँ डेमोक्रेसी भी रहेगा, उसके साथ साथ मतलब एरिस्टोक्रेसी इस तरीके से रहेगा ताकि वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स को हैम्पर ना करे। सो दिस काइंड ऑफ नेगोशिएशन कि दोनों का ही कुछ कुछ चीज मतलब 50-50 आप करो और एक बैलेंस करके चलो। कॉम्प्रोमाइज हियर एक्चुअली मींस बैलेंस, यस, एक मिडिल वे एंड बैलेंस। तो मिडिल वे का मतलब ही है कि दोनों चीज के बीच में आप बैलेंस करके चलो। तो ये पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने बैलेंस किया, बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बैलेंस किया? रिलीजियस फील्ड में उन्होंने क्या बताया, जो मेन फील्ड था कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन। सो विक्टोरियन पीपल डिसाइडेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस वाज एक्सेप्टेड। एब्सोल्युटली साइंस का डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, बट रिलीजियस बिलीफ्स वर नॉट इग्नोर्ड। यस, तो देखो जो जिस तरीके से आज हम चल रहे हैं, हम भी आज साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में हैं, हम तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं, राइट। बट ऐसा तो नहीं है कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट को यूज कर रहे हैं विच मीन्स कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग गॉड, ऐसा नहीं है। हम आज भी मंदिर में जाते हैं, हम आज भी घर में पूजा करते हैं, राइट। बट दैट डजंट मीन कि वी आर ऑर्थोडॉक्स, वी आर प्रिमिटिव बारबेरियस पेगन पीपल, नो, नॉट। सो डेवलपमेंट ऑफ साइंस भी हमने एक्सेप्ट किया, उसके साथ साथ रिलीजियस बिलीव्स भी हमने एक्सेप्ट किया। सो इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज उन्होंने बनाया कि हाँ चलो साइंस तो बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट नेसेसरी भी है हमारी जीवन के लिए। तो सिर्फ रिलीजियन से जीवन नहीं चलेगा, साइंस का सहारा हमें लेना ही लेना है। एंड उसके साथ साथ मतलब ऐसा बात नहीं है कि गॉड नाम का कुछ भी चीज नहीं है, रिलीजियन नाम का कुछ भी चीज नहीं, ये होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होगा सो सोसाइटी में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। आज देखो जो भी मतलब क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज हो रहा है तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ये बिलीफ ही ना रहे ह्यूमन बींग्स के अंदर कि गॉड नाम का कोई चीज नहीं है, ये जो सीन वर्च्यू का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है कि लोग और भी ज्यादा बुरे काम में चला जाएगा कि चलो कोई तो पनिशमेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं पनिशमेंट होगा, हमें हेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हेल नहीं जाना पड़े तो जो मर्जी आए करो, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऊपर वाला अगर है ही नहीं तो जो मर्जी आए करो,
और जो वर्चुअस पीपल है वो भी क्या सोचेगा? वर्चुअस पीपल क्या सोचता है कि अगर हम पूरे के पूरे लाइफ वर्चू में लीड करें तो अल्टीमेटली गॉड विल हेल्प अस टू प्रॉस्पर। तो अगर हम सही रास्ते से चले तो भगवान जरूर हमें मदद करेगा। और अगर भगवान है ही नहीं तो वो भी क्या सोचेगा कि इतना ऑनेस्ट होकर क्या हम करें, भगवान तो है ही नहीं। तो हम भी कोई बुरे रास्ते पर जाकर अगर हमें ज्यादा पैसा मिलता है तो हम वही करेंगे, राइट? सो रिलीजियस बिलीफ को अगर हम पूरा का पूरा छोड़ दे तो वो नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड जैसा सिनेरियो हो जाएगा जो डोहर बीच में बताया मैथ्यू आर्नल्ड ने। सो विक्टोरियन पीपल क्या देखा कि दोनों ही फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस को भी हम निगेट नहीं कर सकते एंड रिलीजियन को भी अगर हम निगेट कर दे तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस वाज आल्सो एक्सेप्टेड बट रिलीजियस बिलीफ्स वर आल्सो देयर साइड बाय साइड। ठीक है, yes, science for development and rationality and religion for morality and ethical values. Yes, शुभांगी, very good. So morality and ethical values ये concept absolutely ये religion से ही आते हैं। और देखो हर एक moral ethical values के पीछे यही होते हैं कि अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने बच गया लेकिन अल्टीमेटली ऊपर वाला आपको देख रहा है, वो आपको जरूर कोई ना कोई पनिशमेंट देगा। हम देखो डेली लाइफ में अक्सर ये बात कहते हैं कि एक भाई देख रहा है वो तो तुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सो ये हम किसके बेसिस पर कह रहा है कि मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज जो पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन रिलीजन, यस एब्सोल्युटली, एंड साइंस बेस्ड है हमारी डेवलपमेंट एंड रैशनैलिटी, एब्सोल्युटली, एंड ऑल्सो टू लीव अवर लाइफ। तो लाइफ में जीने के लिए साइंस बहुत जरूरी है, हम साइंस के बिना एक मोमेंट भी नहीं रह सकते। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि रिलीजन को हम पूरा का पूरा छोड़ दे। तो दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया। And in the field of relationship, yes, this is also important, they restricted the physical passion to conjugal felicity. तो ये उन्होंने क्या किया कि फिजिकल पैशन मतलब अनब्रिडल्ड फिजिकल पैशन ये उन्होंने कंट्रोल किया। फिजिकल पैशन यस इट इज नेसेसरी फॉर प्रोक्रिएशन, बट वो कहां तक नेसेसरी है? जहां पर वो मैरिड लाइफ का जो बाउंड्री है उसके अंदर, उससे बाहर नहीं। मतलब आप कोई एडल्टरस चीज नहीं कर सकते। आप अगर उस मैरिज के बाउंड्री के अंदर फिजिकल पैशन इज अलाउड बट नॉट आउटसाइड दैट। ठीक है, तो यही सबसे मतलब लीगल वे ऑफ प्रोक्रिएशन है। सो यस, फिजिकल पैशन इज नॉट इग्नोर्ड, इट इज बैड, इट इज वेरी टैबू थिंग, नो, दैट इज नॉट दैट। उन्होंने कंप्रोमाइज कैसे किया कि यस फिजिकल पैशन इज नेसेसरी बट इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड हम कैसे करें? इन द बाउंड्री ऑफ मैरिज। तो कॉन्जुगल फेलिसिटी के साथ उन्होंने पैशन को मैच करा दिया। तो ईच एंड एवरी फील्ड में कॉम्प्रोमाइज हमने देखा, फील्ड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, फील्ड ऑफ रिलीजियन, फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो दोनों अपोजिट वैल्यूज को बैलेंस करके उन्होंने एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की, दैट इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है विक्टोरियन एज का। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन पोएट्री। यही आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम जानेंगे, मतलब विक्टोरियन पोएट्री का। ठीक है, अभी तक हमने बात की विक्टोरियन एज का, बट नाउ वी विल लुक एट कि विक्टोरियन पोएट्री का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? देखो, द पोएट्स प्रेफर्ड लेंथी नैरेटिव टू शॉर्ट लिरिक्स। लेंथी नैरेटिव टू शॉर्ट लिरिक्स। तो विक्टोरियन एज में अगर आप देखो तो कोई भी अगर आप पोएम उठाओ तो बहुत शॉर्ट पोएम नहीं था, मतलब सोनेट टाइप का या फिर और भी छोटा, मतलब ऐसा नहीं कि सोनेट नहीं था, सोनेट था पर लेकिन ज्यादा से ज्यादा लेंथी पोएम बहुत ज्यादा था, लेंथी नैरेटिव। पोएट्स प्रेफर लेंथी नैरेटिव टू शॉर्ट लिरिक्स। शॉर्ट लिरिक्स बहुत कम लिखा गया है, ठीक है, लेंथी नैरेटिव ही ज्यादा था। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा क्या है? फोकस्ड ऑन मीटर एंड रिदम एंड लेस ऑन इमेजरी। देखो यहाँ पर जो बैलेंस हमने बताया कि हाँ, ये भी एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि बैलेंस बिटवीन न्यू क्लासिकल आइडियल्स एंड रोमांटिक आइडियल्स। ठीक है, हाँ, यस, फेलिसिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड इन चॉसर्स वर्क। हाँ, यस, तो फोकस, ये देखो जब सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं कि फोकस्ड ऑन मीटर एंड रिदम, ये बहुत ज्यादा एसोसिएट हो रहा है विथ न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में अगर आप पोप को कहो या फिर और राइटर्स को कहो तो उनका भी एक स्ट्रिक्ट रूल था कि क्लासिकल पोएट के जैसा लिखना है, उनके जैसा राइम स्कीम यूज करना है, राइट? सो फोकस्ड मोर ऑन मीटर एंड रिदम एंड लेस ऑन इमेजरी। एक टाइप का बैलेंस करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट क्या है? विद द थ्रेट ऑफ पोटेंशियल रिलीजियस एनिहिलेशन लूमिंग लार्ज, रिलीजियस पोएट्री बिकेम एन इंपॉर्टेंट एड टू स्प्रेड फेथ। यस, तो रिलीजियस पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रिलीजियस पोएट्री इसलिए लिखा गया ताकि लोगों के ऊपर से ये बिलीफ कंप्लीटली ना हट जाए, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत डेंजरस हो सकता है।
ठीक है। तो रिलीजियस पोएट्री बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड जहां पर मेन मतलब रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का नाम आप जानते हो, तो जॉन केबल, जॉन हेनरी न्यूमैन, दे वर द मेजर exponent of Oxford movement. ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली, द पर्पस वाज बेसिकली दैट कि टू प्रोटेक्ट रिलीजियन, टू प्रोटेक्ट द बिलीफ इन चर्च, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए रिलीजियस पोएट्री, टेनिसन रोट 133 कैंटोज इन मेमोरियम। हाँ, यस। तो मतलब रिलीजियस पोएट्री के ऊपर फोकस बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ गया ताकि लोगों के ऊपर ये फेथ बना रहे, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी तो साइंस के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन रिलीजियन के ऊपर थोड़ा बहुत ह्यूमन फेथ जगा रही, इसलिए हाँ, तो इसीलिए क्या था कि जॉन केबल, जॉन हेनरी न्यूमैन, रिलीजियस मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एंड रिलीजियस पोएट्री के ऊपर फोकस ज्यादा था। उसके बाद क्या था, देयर वाज अ सेंस ऑफ हाई मोरालिटी that encouraged the Victorian poets to praise the heroic attitudes of classical and medieval time. Yes, आप अगर टेनिसन के यूलिसिस को देखो, so it is actually that कि praising the heroic attitude, यूलिसिस के हीरोइज्म के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि सेंस ऑफ हाई मोरालिटी, यस, वो तो जरूर था, एंड उसके अंदर क्या था कि हीरोइक एटीट्यूड्स ऑफ क्लासिकल एंड मेडिएवल टाइम, उनको एक, उनका एक रिवाइवल आप कह सकते हो, या फिर उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, ये एक मकसद था विक्टोरियन पोएट्स का। हाँ, नेक्स्ट क्या था, इंटेलेक्चुअल ओवर इमोशनल। यस, तो पोएट्री बिकेम ए मीडियम टू डिस्कस सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये फीचर सिर्फ पोएट्री में ही नहीं, अगर आप नॉवेल में भी देखो, मैंने जो बताया, नॉवेल में भी वही बात है कि इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा है, और सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, डिकेंस एंड हार्डी आर द वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वंस मोर, शुभांगी, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज बेसिकली स्टार्टेड बाय जॉन हेनरी न्यूमैन, उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था, एंड उन्होंने बहुत सारे मतलब ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्क जो उन्होंने सबमिट किया था, ठीक है, ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स, एंड और भी कई सारे रिलीजियस वर्क्स उन्होंने लिखा था जॉन हेनरी न्यूमैन ने। तो उन्होंने भी मतलब उसका भी पर्पस ये था कि टू प्रोटेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड टू रिवाइव द फेथ, एक्चुअली इससे ही स्टार्ट हुआ था। तो ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट था, एंड विक्टोरियन एज में सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है। दिस इज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो जॉन हेनरी न्यूमैन वाज द मेन एक्सपोनेंट, एंड उसके साथ जॉन केबल भी थे, ठीक है। तो ये बात है, जॉन हेनरी न्यूमैन, जब ये वर्क्स हम डिस्कस करेंगे तब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हम और डिटेल में एक बार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो और क्या था कि इंटेलेक्चुअल ओवर इमोशनल था, जो मैं बता रही थी कि पोएट्री बिकम अ मीडियम टू डिस्कस सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पोएट्री के अंदर ये, नॉट ओनली इन पोएट्री, आप नॉवेल में भी ये कह सकते हो कि सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो सोसाइटी के ऊपर, जो हमने एकदम बिगिनिंग में बताया कि सोसाइटी के ऊपर फोकस ज्यादा था। हाँ, जॉन हेनरी न्यूमैन, कार्डिनल जॉन न्यूमैन ये भी कहा जाते हैं। हेलो जशोदा, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सो यस, बिकम अ मीडियम टू डिस्कस सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, आज शाम को 7:30 बजे, मैं एक चीज बता दूं, आज शाम को 7:30 बजे जो क्लास है, मैं जल्दी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, दैट इज ऑन पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो हमने स्टार्ट की थी पीपल एंड एनवायरनमेंट में। हमारा 3 पॉल्यूशन बाकी था, एयर, वाटर एंड नॉइस। तो आज हम एयर पोल्यूशन को कवर करेंगे, और कल की क्लास में वी विल डू नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट्स, ये पेपर 1 का आपका क्लास हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद एक एमसीक्यू सेशन भी होगा ओवरऑल पीपल एंड एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ से बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आज शाम 7:30 बजे की टॉपिक है। सो दिस इज, हाँ, शाम का ये टॉपिक है शुभांगी, पेपर 1 पीपल एंड एनवायरनमेंट, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन हमारा बाकी रह गया था, तो एयर पोल्यूशन आज हम कंप्लीट करेंगे, और एक क्लास में हम वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो यस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज फर्स्ट क्लास था मेरी चैनल पर, बट मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। यस, तो आप वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो, एंड टेलीग्राम चैनल में आप स्टूडेंट को जुड़ते रहो, ठीक है। सो यस, दिस इज द क्लास टाइमिंग, एंड ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लिंक शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। सो यस, दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू ऑल। सो सी यू ऑल टुडे एट 7:30 PM
Have a nice day. Bye bye.